میرا ٹائمز میں خوش آمدید۔ آسام کو دنیا کا دوسرا میانمار بنانے کے منصوبے پر وہاں کی سرکار نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہت پہلے اپنے ایک ویڈیو میں نے کہا تھا کہ اسم کی ہیمنتا بسوا شرما کی سرکار آسام کو دنیا کا دوسرا میانمار بنانا چاہتی ہے۔ جس طرح آسام کے روہنگیا مسلمانوں سے ان کی شہریت کو چھین لیا گیا، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، ان کے لوگوں کو مار دیا گیا اور کہا گیا تم یہاں کے شہری نہیں ہو، تم کو میانمار چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے بعد لاکھوں مسلمانوں کو میانمار چھوڑنا پڑا۔ بہت سارے بنگلہ دیش گئے، دوسرے علاقوں میں گئے، بہت سارے کو مار دیا گیا، بہت سارے سمندر میں ڈوب گئے، بہت ساروں کی کشتیاں الٹ گئی، اور اب وہی حال آسام کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ آسام کی موجودہ سرکار کی کیبنٹ نے ایک SOP کو منظوری دیا ہے، جس کے بعد کسی بھی اسم کے مسلمان کو پکڑا جائے گا اور کہا جائے گا تم انڈین نہیں ہو، اور صرف 10 دنوں کا ٹائم دیا جائے گا کہ 10 دنوں میں انڈین ہونے کو ثابت کرنا ہے، اور اگر اس مسلمان نے 10 دنوں میں اپنے انڈین شہری ہونے کو ثابت نہیں کیا، اس کے بعد BSF اس کو اٹھائے گی، سرحد کے پار بنگلہ دیش یا پاکستان میں پھینک دے گی اور کہا جائے گا تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو۔ پہلے کم از کم ڈاؤٹ فل ہونے پر یا شہریت ثابت نہ کرنے والوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجا جاتا تھا، ان کو کھانا پانی دیا جاتا تھا، لیکن اب یہ بھی نہیں ہوگا، سیدھے بارڈر کے پار پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یا میرے لفظوں میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہے۔ آپ انڈین ایکسپریس کی اس رپورٹ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، دوسری جگہ بھی یہ خبر آ چکی ہے۔ The Assam cabinet has approved the framing of an SOP under the Immigrants Expulsion from Assam Act 1950 to guide the district commissioners and senior police officers to expel illegal migrants from the state and tackle illegal immigration from neighboring countries. اسم کی ہیمنتا بسوا شرما کی سرکار کی کیبنٹ نے SOP یعنی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کو منظور کیا ہے، اور یہ SOP امیگرینٹس ایکٹ 1950 کو نافذ کرے گی، اور اس ایکٹ میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کو شہریت ثابت کرنی ہے۔ پورا معاملہ کیا ہے اس کو سمجھیے، امیگرینٹس کیا ہے اس کو سمجھیے۔ ہو سکتا ہے BJP والے کل ہو کر یہ کہیں گے جب اس پر ہنگامہ ہوگا کہ یہ کانگریس کی سرکار نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے 1950 میں ہی اس ایکٹ کو نافذ کیا تھا، بیچ میں اس قانون پر عمل نہیں ہو رہا تھا، اس لیے BJP سرکار نے دوبارہ اس قانون پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو کانگریس کا لایا ہوا ہے، اس کے لیے ذمہ دار تو پنڈت جواہر لال نہرو ہیں۔ اس لیے معاملہ کیا ہے پہلے اسے سمجھیے۔ اسم میں چیف منسٹر ہے ہیمنتا بسوا شرما، BJP کی وہاں حکومت ہے، اور وہاں کی کیبنٹ نے SOP کو منظوری دی ہے، جس کے مطابق اگر آسام کے کسی بھی مسلمان شہری کے حوالے سے شک ہوگا، یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ انڈین شہری نہیں ہے، تو اس کو نوٹس ایشو کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگلے 10 دنوں میں تمہیں شہریت ثابت کرنی ہے، اور اسے شہریت ثابت کرنے کے لیے فورنر ٹریبونل نہیں بھیجا جائے گا جیسا کہ پہلے آسام میں ہو رہا تھا، بلکہ ڈسٹرکٹ کمشنر کے سامنے ڈاکومنٹ لے کر جانا پڑے گا، اور ڈسٹرکٹ کمشنر کو اگر اطمینان ہو گیا کہ شہریت کے ثبوت کے لیے جو ڈاکومنٹ دکھایا گیا ہے وہ صحیح ہے، تو اس کو بھارت کا شہری مانا جائے گا، اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ اور اگر ڈسٹرکٹ کمشنر کو لگا کہ بھارت کا شہری نہیں ہے، جو ڈاکومنٹ اس نے دکھائے ہیں وہ شہریت کی ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر ڈسٹرکٹ کمشنر کا فیصلہ آخری ہوگا، اور ڈسٹرکٹ کمشنر اس کو ہولڈنگ ہاؤس بھیج دے گا، ہولڈنگ سینٹر اس کو روانہ کر دیا جائے گا، اور وہاں سے BSF اس کو بارڈر کے پار بھیج دے گی۔ اور تفصیل میں سمجھیے جو انڈین ایکسپریس نے شائع کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، ملا ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، یہاں ایک QR کوڈ موجود ہے یا ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس پر کلک کریں گے تو ملا ٹائمز کی ویب سائٹ کا یہ پیج کھلے گا، جہاں پلان موجود ہے 99 to 99۔ کوئی بھی ایک پلان لے کر آپ ہماری ممبرشپ لے لیجئے، کسی طرح کی کوئی دشواری آتی ہے تو آپ ہمیں کال کر لیجئے۔ آسام کا پورا معاملہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ آسام انڈیا کا ایک ایسا اسٹیٹ ہے جس کی سرحدیں بنگلہ دیش سے ملتی ہے۔ 1947 میں جب ہندوستان کا بٹوارہ ہوا تو پاکستان بنا اور ہندوستان بنا، لیکن پاکستان 2 حصوں میں تھا، ایک ویسٹ پاکستان اور دوسرا ایسٹ پاکستان، اور ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کی آپس میں سرحد نہیں ملتی تھی۔ ایسٹ پاکستان کو آج بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، جو 1971 میں پاکستان سے الگ ہو گیا۔ اب جب 1950 میں پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا اور پاکستان 2 حصوں میں تھا، تو ادھر کے
मुसलमान उधर जा रहे थे और उधर के हिंदू इधर आ रहे थे, और इस पर बहुत सारी फिल्में बनी हुई है, बहुत सारी तारीख़ी किताबें मौजूद है, बहुत सारे लोगों का कत्ले आम भी हुआ कि हिंदू पाकिस्तान के इलाक़ों से इंडिया आ रहे हैं और इंडिया के इलाक़ों से मुसलमान पाकिस्तान जा रहे हैं। तो जो ईस्ट पाकिस्तान यानी जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ भी बहुत सारे लोग उधर से इधर आ रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे। उसी दौरान उस इलाक़े की इंतज़ामिया को, हुकूमत को लगा कि बांग्लादेश के इलाके से, या कह लीजिए ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे मुसलमान भी इंडिया के इलाके में आ रहे हैं, इनको रोकना ज़रूरी है। चुनांचे उनको रोकने के लिए एक कानून बनाया गया 1950 में, और जिसका नाम रखा गया इमिग्रेंट्स एक्सक्लूजन फ्रॉम आसाम एक्ट। ये ब्रैकेट में है, एक्सक्लूजन फ्रॉम आसाम। ये कानून बनाया गया और उस कानून पर अमल शुरू हो गया। चुनांचे जिसके बारे में भी शक होता था कि वो मुसलमान हैं और ईस्ट पाकिस्तान से इलाके से आया है, तो उसको वहाँ दोबारा फेंक दिया जाता था, वापस पहुँचा दिया जाता था और कहा जाता था कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद 1950 के आखिर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने असम सरकार को इस कानून पर अमल करने से रोक दिया और कहा गया इंडिया और पाकिस्तान की जो तकसीम हुई है तो माहदे में बात शामिल है कि दोनों देश माइनॉरिटी के हुकूक की हिफाजत करेंगे, माइनॉरिटी के राइट को किसी तरह के वायलेशन का सामना नहीं होने देंगे। तो अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है तो उसको बाहर नहीं फेंका जाएगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और उसके बाद इस कानून पर अमल आसाम में नहीं हुआ। तब से कानून यूं ही था, कभी इस पर अमल नहीं हुआ। अब कल यानी 10 सितंबर को हेमंता बिस्वा शर्मा की कैबिनेट ने एसपी को मंजूरी देकर कहा कि जो इमिग्रेंट्स एक्ट 1950 है इसको दोबारा नाफिज किया जाए, और जो कोई भी पाया जाता है कि बांग्लादेशी है, मशकूक है, तो फ़ौरन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को उसकी इत्तला दी जाए और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फैसला करेगा उसके डॉक्यूमेंट को देखकर कि वो शहरी है या नहीं है। अब इसमें 5 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये है कि अगर पुलिस को या बीएसएफ को या किसी भी आम शहरी को लगता है कि शख्स बांग्लादेशी है, इंडियन नहीं है, तो उसको नोटिस इशू कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की तरफ से। नोटिस इशू हो जाने के बाद दूसरा मामला होगा, उस शख्स के पास सिर्फ 10 दिनों का टाइम होगा और कहा जाएगा 10 दिनों में तुम्हें अपनी शहरियत को साबित करना है कि तुम इंडिया के शहरी हो तो कैसे हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद तीसरा काम उसके लिए होगा कि उसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास जाना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाना होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उसके डॉक्यूमेंट से मुतमईन नहीं है तो फ़ौरन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एवोकेशन ऑर्डर जारी करेगा, यानी इसको देश से बाहर निकालो। चौथा काम यह होगा कि उस शख्स को फ़ौरन होल्डिंग सेंटर पहुंचाया जाएगा और वहां से बीएसएफ उसको उठाएगी और बांग्लादेश के सरहद के पार फेंक देगी या पाकिस्तान के सरहद के पार फेंक देगी। यानी अगर कोई अपनी शरीयत को साबित नहीं कर पाता है तो कंफर्म कर लिया जाएगा कि बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, किसी और मुल्क का शहरी नहीं हो सकता। और पांचवा इसमें अहम पॉइंट ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कोई फैसला नहीं कर पाता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कंफ्यूज है, तो फिर उसे फॉरेनर ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा। अब तक आसाम में क्या हो रहा था कि अगर किसी के बारे में ये शक होता था, किसी के बारे में ये खदशा था कि ये आसाम का शहरी नहीं है, ये हो सकता है बांग्लादेशी हो, तो उसको नोटिस इशू किया जाता था, उसके नाम के आगे वोटर लिस्ट में डी लगा दिया जाता था, यानी ये डाउटफुल शहरी है, और फिर उसका केस चला जाता था फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में और उसको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में साबित करना पड़ता था कि वो शहरी है या नहीं है। अब सबसे बड़ा मामला यहाँ पर ये होगा, सबसे बड़ा मसला पैदा ये होगा कि शहरियत के सबूत के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स मोतबर होगा। अब इसकी भी कोई वजाहत नहीं की गई है कैबिनेट की तरफ से, यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के हाथ में पूरा मामला होगा कि किस डॉक्यूमेंट को, किस दस्तावेज को शहरियत का प्रूफ मानना है या नहीं मानना है। और इंडिया में लगातार इस पर सवाल भी उठता रहा है। आधार कार्ड तमाम शहरियों के लिए बनाना लाजमी है, आधार कार्ड के जरिए ही पासपोर्ट बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, दूसरा काम होता है, लेकिन आधार कार्ड को नेशनलिटी का सबूत ही भारत में नहीं माना जाता। इसी तरह वोटर आईडी कार्ड को भी नेशनलिटी का सबूत नहीं माना जाता। और जो डॉक्यूमेंट सबूत मांगा जाता है नेशनलिटी का, वो डॉक्यूमेंट ज़्यादातर लोगों के पास है ही नहीं। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट को माना जाता है, और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का चलन और रिवाज 2000 के बाद लोगों में शुरू हुआ है। और आसाम में तो और ज़्यादा पसमानदगी है, वहाँ गुर्बत है, वहाँ के लोग तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाते ही नहीं थे।
एक दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ज़्यादा मोतबर माना जाता है वो है पासपोर्ट, और पासपोर्ट भी गरीबों के पास नहीं होते हैं, आम लोगों के पास नहीं होते हैं। देश में बहुत कम ऐसा स्टेट है जहां 4-5% लोगों के पास पासपोर्ट हो, वरना किसी भी स्टेट में 1.5 से 2% लोगों के पास ही पासपोर्ट होता है, वरना पासपोर्ट नहीं होता है। असम में जब एनआरसी हुई थी, असम अकट पर साइन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी की फाइनल रजिस्टर तैयार हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिन डॉक्यूमेंट्स को एनआरसी के लिए या इंडियन शहरी के सबूत के लिए मोतबर माना था, उसमें कुल 14 डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन इन 14 डॉक्यूमेंट्स को अब मोतबर माना जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसमें जो मोतबर डॉक्यूमेंट्स था उसमें यह था कि 1951 का जो एनआरसी है उसका कोई सबूत हो, या इलेक्टोरल रोल्स हो जो मार्च 1971 से पहले का हो, या इसी तरह ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स और कागज़ हो कि आपके नाम पर कोई ज़मीन है, या फिर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट हो जो उमूमन लोगों के पास होती नहीं है, या परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, या आपके पास पनाह गुज़ीन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, या इंडिया का पासपोर्ट हो, इंश्योरेंस पॉलिसी हो, कोई भी लाइसेंस हो, या सरकारी मुलाजमत का कार्ड हो, बैंक का अकाउंट हो, या डाकखाना में आपका कोई अकाउंट हो, या इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट हो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, या फिर अदालत का कोई डॉक्यूमेंट्स हो कि आपने किसी अदालत में किसी कोर्ट में कोई मुकदमा लड़ा है। तो 14 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे और उमूमन ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होते। फिर भी लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाया, सबूत पेश किया, और 2019 में जब एनआरसी की फाइनल लिस्ट सामने आई तो उसमें मुसलमानों का बहुत कम नाम था जो शामिल नहीं था। यानी इनका मंसूबा यह था, प्लान यह था कि 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 7-8 लाख मुसलमानों का ही नाम उसमें नहीं था, 19 लाख लोगों में जिनका नाम एनआरसी की फाइनल लिस्ट में नहीं था। अब आसाम की हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ ये नया फैसला कर लिया है। पिछले 2 महीना से लगातार वहां बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी है। 2 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। तकरीबन 7,000 बीघा ज़मीन को खाली करा लिया गया है और प्राइवेट कंपनियों को ये ज़मीनें दी जा रही है। पिछले दिनों ये मामला भी बहुत बड़ा बना। मौलाना अरशद मदनी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने लगातार इस मुद्दे पर बोला है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के जो वर्कर हैं, उनकी तंजीम के जो लोग हैं, लगातार बेघर हुए लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं, उनके लिए रिलीफ का इंतज़ाम कर रहे हैं। बीच में मौलाना महमूद मदनी भी आसाम पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि मैं आसाम आ गया हूँ, गुवाहाटी में मौजूद हूँ, और कहा हेमंता बिस्वा शर्मा वो चाहे तो मुझे बांग्लादेश भेज दे। उसके बाद मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नफरत फैलाने वाले लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, भारत में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। फिर हेमंता बिस्वा शर्मा ने धमकी दी कि मौलाना महमूद मदनी को मैं गिरफ्तार भी कर सकता हूँ, उनके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ और उन पर मेरी मुकम्मल नज़र है। लेकिन मौलाना महमूद मदनी ने उन दिनों हिम्मत का मुजाहरा किया, जुर्रत दिखाई और सीधा जाकर चैलेंज किया हेमंता बिस्वा शर्मा को। और अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये नया SOP मंजूर कर दिया है, इमिग्रेंट्स एक्ट 1950 को नाफिज कर दिया है, और वहाँ के मुसलमानों पर जो ख़तरा मंडलाने लगा है वो बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा इशू है कि किसी को गिरफ्तार किया जाएगा और 10 दिनों का टाइम दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फैसला करेगा वो शहरी है या नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए शहरियत के सबूत के लिए, ये मामला सामने नहीं आया है। तो नो डाउट कि आसाम के खिलाफ जो साजिशें हो रही है और आसाम के मुसलमानों को जिस तरह सताया जा रहा है, बहुत बड़ा इशू बन चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 24 मार्च 1971 से पहले जो असम में मौजूद था वो इंडिया का और आसाम का शहरी माना जाएगा, उसे बांग्लादेशी करार नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फिर से वायलेशन किया जाएगा और एक नए तरीके से डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। इन्हीं लोगों के कहने पर आसाम में एनआरसी हुई थी और एनआरसी की फाइनल लिस्ट आ चुकी और उससे अब इन लोगों को तसल्ली नहीं हो सकी। इनको लगा अभी भी आसाम में 34% मुसलमानों की आबादी है, धुबरी में, लोअर आसाम में तकरीबन 70% मुसलमानों की आबादी है, इसी तरह मिडिल आसाम में 40 से 50% मुसलमानों की आबादी है। तो इतनी बड़ी इनकी आबादी क्यों है, इनको घटाया जाए। और ये
तमाम हरबे अपनाए गए और अब एक नया तरीक़ा अपनाया जा रहा है। और जो भी आसाम में गवर्नमेंट रही है वो वहाँ के मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये काम करती रही है। कांग्रेस की सरकार भी पहले वहाँ के मुसलमानों के ख़िलाफ़ यही करती थी और अब बीजेपी की सरकार तमाम हदों को पार कर चुकी है मुसलमानों को बांग्लादेश भेजने के लिए। जबकि आसाम के जो पूरा इलाका है या वेस्ट बंगाल का जो पूरा एक इलाका जो बांग्लादेश की सरहद से मिलता है, ये बांग्ला तहजीब वाला है, बांग्ला कल्चर वाला है, ये पूरा बंगाली इलाका माना जाता है। बांग्ला जो तहजीब और कल्चर है वो दो मुल्कों में तकसीम है। एक पूरा देश बांग्लादेश बन चुका है और एक उस तहजीब और कल्चर का अच्छा खासा हिस्सा इंडिया के दो स्टेट में मौजूद है, आसाम में है और बंगाल में है। बल्कि बांग्ला तहजीब और कल्चर का कुछ इलाका और हिस्सा तो बिहार तक पहुंचा हुआ है। बिहार का जो किशनगंज का एरिया है, पूर्णिया का इलाका है, वो बुनियादी तौर पर बंगाल का ही इलाका माना जाता था। तो बांग्ला तहजीब और कल्चर होना, बंगाली ज़ुबान होना इस बात का सबूत नहीं है कि वो बांग्लादेशी है। बांग्लादेश अलग है, बांग्ला ज़ुबान तहजीब और कल्चर अलग है और इसी को सरकार फ़र्क नहीं कर रही है। अब अलमिया यह हो गया है कि अगर कोई मुसलमान बंगाली ज़ुबान बोलता है तो बांग्लादेशी है और अगर कोई हिंदू बंगाली ज़ुबान बोलता है तो वो बंगाली इंडियन है। ये जो पैमाना है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी।